Hello students, I Anshu Sherawat welcome you all to your education channel English Winglish. Today I am going to teach you a beautiful poem from your syllabus, that is The Laburnum Top, written by Ted Hughes. Students, before proceeding for reading and explanation of this poem, I want to introduce you all guys with the summary of this amazing outstanding poem. Students, note this summary in your notebook in yellow pages and wherever you want. Okay, but wherever you note it out, please note where you can remember it again. Okay, don't forget that page, don't forget that yellow sheet, don't forget that notebook, because guys, summary is a very important part of the chapter as well as of the poems, because it helps you when you have only one day with you before the examination. Okay, and at that time you have to remember all the events, all the circumstances, causes, and all the happenings in that particular chapter. So revising that things, you can use summary, and at that time this will be helpful to you. So guys, there is also one note for you. If you don't able to understand this summary which I have written for you, then please guys, don't panic yourself, don't worry, because I am there with you. When I explain you each and every line of this poem, each and every stanza of this poem, then believe me guys, this summary, this which you are feeling right now, it is lengthy, this summary will be at your fingertips. Okay, so firstly start with its reading and then I will explain you. It is written by Ted Hughes. The poem revolves around a laburnum tree and a goldfinch bird. The core theme of the poem shows us the repaying relationship between the two. Further, it begins by describing how the laburnum tree is pretty quiet in the yellow September light. He notices the yellow leaves of the tree and the seeds on the ground. It appears to be still, flattingly, till a goldfinch bird perches on its branch. The poet witnesses the tree come to life as soon as the bird starts chirping. Upon the arrival of the mother goldfinch, the tree and the nestlings start chirping and become alive. She keeps flying in and out to feed her young ones. Thus, when she leaves the tree, once again dawns it elusive silence. तो स्टूडेंट्स, इस समरी में हमें ये बताया गया है कि कैसे ये जो पूरी पोयम है द लेबर्नम टॉप, जो पोयम है ये दो कैरेक्टर्स के बीच रिवॉल्व होती है. दो कैरेक्टर कौन कौन से? लेबर्नम ट्री, इसका मैं आपको हिंदी में मतलब बताती हूँ. लेबर्नम ट्री को हम हिंदी में बोलते हैं अमलतास का पेड़. ये आपको अगर आप बाहर निकलेंगे तो ईजिली आपको दिखाई दे जाएगा. इसकी येलो जो फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ये आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे. और जो गोल्डफिंच बर्ड है वो और लेबर्नम ट्री, अमलतास का पेड़, उन दोनों के बीच कैसे ये पूरी की पूरी पोएम रिवॉल्व करती है. और जो इस पोएम में जो कोर थीम है वो है इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, कि कैसा इनका रिलेशनशिप है. यहाँ पे इस पोएम में ये डिस्क्राइब किया गया है कि लेबर्नम ट्री गोल्डफिंच बर्ड के अराइव होने से पहले कितना प्रिटी लग रहा था ऑटम सीज़न में. ऑटम सीज़न यहाँ 3 वर्ड्स से हम पता कर सकते हैं. येलो, सेप्टेम्बर, लाइट. ओके, लाइट तो सनलाइट हो गई, सेप्टेम्बर और येलो मतलब येलो सनलाइट, वहाँ पे सारा येलोइश था. ओके, सेप्टेम्बर में आप जानते ही हैं कि जो गर्मियाँ होती हैं, बारिश हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है. उसके बाद ऑटम आता है, सर्दियाँ आनी ही होती हैं. तो उसके बीच में जो है वो ऑटम सीज़न आता है. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं. और इसमें बताया गया है कि कैसे जो येलो लीव्स होते हैं ट्री के और जो सीड्स हैं वो कैसे ग्राउंड पे गिरे हुए हैं. वो ग्राउंड पे ऑब्वियसली ऑटम सीज़न में विंड आती है, तो विंड से जो पतझड़ का मौसम होता है तो पत्ते गिर ही जाते हैं. तो इसमें आपको यही बताया गया. उसके बाद जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड जो उस ट्री की ब्रांचेस पर आकर बैठती है, वैसे ही कैसे जो वो ट्री है वो अलाइव हो जाता है, उसके अंदर लाइफ आ जाती है. वहाँ पे जैसे ही जो गोल्डफिंच बर्ड उसके ब्रांचेस पर बैठती है, अपनी चिरपिंग स्टार्ट करती है, तो वो जो ट्री है वो एकदम अलाइव हो जाता है, उसके अंदर लाइफ आ जाती है. ओके, और जैसे ही उसके कुछ देर बाद उसकी मदर आती है
तो कैसे जो ट्री है और जो नेस्टलिंग्स हैं वो स्टार्ट कर देते हैं अपने चिरपिंग, और जो ट्री है वो और ज़्यादा ज़िंदा हो जाता है। ओके, और जैसे ही वो इधर से उधर भागती है, मदर जो है वो इधर से उधर भागती है अपने यंग वंस को फीड करने के लिए। तो मतलब हम सिमिलैरिटी से बोल सकते हैं कि वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल होता है जैसा हमारे घर पे होता है। हमारी माँ जो मॉम्स हैं वो हमें फ़ीड करती हैं, वो यहाँ से वहाँ हमारे लिए सर्विंग बाउल्स ला रही हैं, कभी कुछ ला रही हैं। तो ऐसे ही जो गोल्डफिंच की बर्ड्स की जो मदर हैं वो भी ऐसे ही करती हैं, वो भी इधर से उधर फ्लाई करती हैं उनको फ़ीड करने के लिए। तो बिल्कुल घर जैसा माहौल वहाँ होता है। तो मतलब वो जो ट्री है एकदम से अलाइव हो उठता है। लेकिन जैसे ही वो फ़ीड करने के बाद मदर्स चली जाती हैं, गोल्डफिंच भी अपना उड़ जाती है एन्जॉयमेंट के लिए, तो जो लीव्स हैं, जो ट्री है वो फिर से साइलेंस पे आ जाता है, अपनी साइलेंस स्टेट पे, साइलेंस मोड पे, जो जैसे कि वो पहले से था, स्टिल था वो, ठीक है, साइलेंट था वो, ठीक है। तो वैसे ही वो दोबारा उसी स्टेट में, उसी मोड में आ जाता है और वो हम कह सकते हैं एकदम से मर सा जाता है। क्योंकि जैसे ही गोल्डफिंच या उसकी मदर आती हैं तब वो ज़िंदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैपनिंग्स हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे कोई हैपनिंग या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी इवेंट टेक प्लेस नहीं होने वाला था, तो इसलिए वो अब मर सा जाता है, वहाँ पे साइलेंस सी छा जाती है। ओके, आई होप ये समरी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे हम इस पोएम को देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। तो डेफिनेटली ये समरी आपकी फिंगर टिप्स पे होगी, आई गारंटेड यू। ओके, 100% गारंटी। तो अब हम इसका फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलिंग। तो इसमें यही बताया गया है कि जो लेबर्नम टॉप है वो कैसे साइलेंट है, ठीक है, वो कैसे स्थिर है, स्टिल है। ओके, और किस में है वो स्टिल और स्थिर, वो है आफ्टरनून। यहाँ पे वो टाइमिंग बताई गई है कि ये ऑटम सीज़न है और आफ्टरनून है यहाँ पे। ओके, टाइम बताया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा सीज़न है, ऑटम सीज़न। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे ऑटम सीज़न है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बोला गया है ना कि येलो सितंबर सनलाइट, येलो आपका यहाँ पे दिखाया जाता है कि सनलाइट का रिफ्लेक्शन कैसे, सनलाइट, सन जो है वो येलो कलर का होता है, इट्स येलो इन कलर। ओके, येलो कलर का सन होता है। और सितंबर, यानी सितंबर यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे आपका फर्स्ट आपकी आती है समर्स आता है, उसके बाद आ जाता है आपका रेन आ जाता है, उसके बाद आपकी बीच में रेन के और जो विंटर आने वाली होती है उसके बीच में आता है आपका ऑटम डे। तो उस ऑटम के सीजन्स में ये सब कुछ आपका ये जो पोएम है, ये पोएम की जो भी हैपनिंग है वो हुई है, ठीक है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स सेड, जैसा कि अब आपने पढ़ा है कि ऑटम सीजन में, पतझड़ के महीने में जो सारे पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं पेड़ों से, जो सीड्स होते हैं वो भी ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो वही जो हैपनिंग है ये कॉमन सी हैपनिंग है, एक वही यहाँ पे टेक्स प्लेस हो रही है। उसके बाद यही एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट या आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताती हूँ। ओके, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया। द पोइट डिस्क्राइब्स अ ब्यूटिफुल सनी ऑटम, मैं बता रही थी ना ऑटम, तो यही वहाँ पे ऑटम सीजन आ रखा है, ठीक है। द लेबर्नम ट्री इज़ साइलेंट एंड स्टिल, it is laden with yellow leaves and yellow flowers in September. Its leaves have turned yellow because of the autumn season and all its seeds have fallen. तो यही यहाँ पे बताया गया है जो मैंने आपको पहले बता दिया हिंदी में। Second stanza of the laburnum top. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then, sleek as a lizard and alert and a bird, she enters the thickness and a machine starts up, of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face, identity marks. ओके, तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो गोल्डफिंच है वो जब तक नहीं आती है तो कैसे जो लेबर्नम है वो कितना, लेबर्नम की टॉप है वो कितनी साइलेंट होती है, स्टिल होती है। लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच आ जाती है, उसकी जो ट्विचिंग चरप है, ट्विचिंग चरप मतलब अचानक से एकदम
हाई पिच वाली आवाज़ जो वो निकालती है, एक्चुअली वो बर्ड है तो फिर जैसी वो बर्ड्स की आवाज़ें होती हैं एकदम सडन तरीके से वो आवाज़ निकालती है, एकदम हाई पिच पे वो जब निकालना शुरू कर देती है। अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड, किसी भी ब्रांच की एंड पर बैठ के वो एकदम से अचानक से बिल्कुल हाई पिच की वॉइस पे वो चिरपिंग करना शुरू कर देती हैं। और वो कैसे एकदम लिजर्ड की तरह एकदम अलर्ट होती है, अलर्ट होती है, ठीक है। कौन? गोल्डफिंच एकदम लिजर्ड की तरह। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, लिजर्ड को कंपेयर किया गया है गोल्डफिंच के साथ। जैसे लिजर्ड अलर्ट होती है, अबर्ट होती है, जैसे अभी कहीं पर आपकी दीवार पर लिजर्ड होगी, आप उसकी परछाई पर भी आप उसकी टैब करेंगे अपने हाथ से तो वो एकदम से वहाँ से चली जाएगी, तो वो होती है अलर्टनेस, अबर्टनेस, ओके। वो आपकी टैब के बाद ऐसा रिएक्ट कर रही है, कैसा रिएक्ट कर रही है, वो वहाँ से चली जा रही है तो वो अबर्ट हो गया, ओके। और वो टैब कर रही है और वो उसको पता चल गया, उसे पता चल गया कि आप उसको टैब करने वाले हो, आप उसे या तो पकड़ने वाले या मारने वाले हो, जो भी वो अंडरस्टैंड करती है तो वो वहाँ से चली जाती है, मतलब वहाँ पे उसके अलर्टनेस है, ठीक है। तो वही उसी काइंड की अलर्टनेस, अबर्टनेस यहाँ पे गोल्डफिंच में पोएट ने बताई गई है। शी एंटर द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, वो जैसे धीरे धीरे उस जो लेबर्नम ट्री है उसके और अंदर गहराई में जाती रहती है, और जैसे कि वहाँ पे एक मशीन सी स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो जैसे ही उस ट्री के अंदर जाती है वहाँ पे और ज़्यादा बर्ड्स आ जाती हैं, वो चिरपिंग स्टार्ट कर देती है, तो ऐसा लगता है कि कोई मशीन स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्योंकि सब एकदम एक जैसी ही होती हैं, गोल्डफिंच जो बर्ड्स होती हैं वो सडननेस दिखाती हैं, वो स्टार्टनमेंट दिखाती हैं, वो एकदम अलर्ट होती हैं, अबर्ट होती हैं, तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हर एक में सेम ही हैं। तो ऐसे करते हैं कि जैसे ही वहाँ से आवाज़ें आने शुरू हो जाती है, उस ट्री से आवाज़ें आने शुरू हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन जो है वो एकदम से स्टार्ट हो गई है, ओके। कैसे मशीन स्टार्ट हो गई है? क्योंकि वहाँ से चिटरिंग की आवाज़ आती है, ट्रेमर ऑफ विंग्स की, जो वहाँ पे विंग्स जो हैं वो उड़ते से दिखाई देते हैं, ठीक है, ट्रिलिंग्स की आवाज़ें आती हैं, तो ऐसा लगता है कि जो मशीन है कोई भी किसी भी तरह की वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल, पूरा जो ट्री है वो एकदम से जिंदा सा हो जाता है, उसमें लाइफ सी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ पे कोई हैपनिंग हो रही है, वहाँ पे जो है वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यस वो अभी ज़िंदा है, उसमें अभी लाइफ आ गई है, ठीक है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये एक तरह का इंजन है फैमिली का। अब हमारा इंजन क्या है? हमारा घर है, तो उनका इंजन क्या हुआ? उनका इंजन वो ट्री हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका नेस्ट बना हुआ होता है, वहाँ पे वो हमेशा आती जाती रहती है, तो ट्रीज़ जो है वो बर्ड्स के जो आप कह सकते हो इंजन होता है उनकी फैमिली का। हमारी फैमिली का क्या इंजन है? हमारा घर है, ओके। तो ऐसे ही उनका जो घर है वो उनका ट्री है, तो इसलिए वहाँ पे बोला गया है कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब वो जो उसकी जो गोल्डफिंच हैं उसकी मदर्स आना स्टार्ट करती हैं, वो उन्हें फ़ीड करना शुरू कर देती है। गोल्डफिंच की मदर आना शुरू करती है, वो उन्हें फ़ीड करना शुरू कर देती है, तो बिल्कुल वहाँ पे एकदम जैसा हमारा घर जैसा माहौल होता है वैसा ही वहाँ पे माहौल होता है। यहाँ पे बस इतना है कि हमारी मदर्स हमें फ़ीड करती हैं, मतलब बच्चों को फ़ीड करती हैं, वहाँ पे उनकी मदर उन्हें फ़ीड करती है, ठीक है। इतना ही सब कुछ वहाँ पे रहता है। और उसके बाद शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मार्क्स। अब एक खासियत होती है, जो गोल्डफिंच जो बर्ड्स होती हैं वो येलो कलर की होती है, लेकिन उनके मुंह पर ब्लैक कलर के मार्क्स होते हैं, जिसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं आइडेंटिटी मार्क्स, ओके। तो उनसे वो जानी जाती है कि वहाँ कोई बर्ड बैठी है, क्योंकि लेबर्नम जो ट्री है वो उसके फ्लावर्स, उसके सीड्स भी येलो कलर के होते हैं, और जो गोल्डफिंच बर्ड होता है उसका कलर भी येलो ही होता है, लेकिन उसके फेस पे जो भी मार्क्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, जिससे कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ ये गोल्डफिंच बर्ड है यहाँ पे, ठीक है। सो स्टूडेंट, हेयर इज़ द रिटन एक्सप्लेनेशन फॉर सेकेंड स्टेंजा। इस रिटन एक्सप्लेनेशन में भी यही सब चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप इसको कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसको बाद में या फिर आप इसको बाद में रिव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओके। चलो अब हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ रीड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया। जस्ट देन अ गोल्डफिंच alights on the laburnum tree, making short, high-pitched sounds. The goldfinch has her nest in the tree, and her chicks are resting in the nest.
On the mother's return, a sudden movement stirs the tree. Her little ones are excited on her arrival and start chirping. The cautious mother enters the tree with great care so that no predators can come to know that her babies are housed in the nest. The poet has compared the alert, abert, and sleek movement of the goldfinch with that of a lizard. The goldfinch has been called the engine of her family. Just as the engine starts up the machine, her arrival in the nest has suddenly started up the silent machine. That is, the young ones has started chittering and making noise. By feeding her young ones, she has added fuel to the machine, and as a result, the chicks now have the energy to be active and make noise. After feeding her chicks, the goldfinch flies up and rests on the end of the branch of the tree, her identity concealed behind the yellow flowers and yellowing leaves. तो यही बताया गया है यहाँ पे कि कैसे जो गोल्डफिंच की मदर आती हैं वो उन्हें फीड करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं उनकी आइडेंटिटी को दिखाते हुए. ओके. थर्ड स्टेंजा ऑफ द लेबर्नम टॉप. देन विद array delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinity and the laburnum surprised to empty. इसमें बताया है कि कैसे जो मदर है, गोल्डफिंच की मदर है, वो वहाँ से चली जाती है और कैसे जो लेबर्नम ट्री है वो अपनी साइलेंट मोड, साइलेंट स्टेट पे वापस से आ जाता है जैसे वो उसके अराइवल से पहले था. ओके. यहाँ पे इसका रिटन एक्सप्लेनेशन है. आफ्टर सम टाइम द गोल्डफिंच मेक्स अ स्ट्रेंज short high pitched sound, then she flies away towards the infinite sky. The laburnum tree becomes silent again after the departure of the goldfinch, and everything seems to be the same as it was before the arrival of the goldfinch. तो यही यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वो गोल्डफिंच जो है वो बहुत ही स्ट्रेंज शॉर्ट में अपनी एक हाई पिच्ड वॉइस रिलीज़ करती है वहाँ से और वो फ्लाई ऑफ कर जाती है इनफाइनाइट स्काई, मतलब जिस स्काई का कोई अंत ना हो. ओके. क्योंकि अब जो स्काई है वो ही उनके लिए रोमिंग प्लेस है. किन के लिए? बर्ड्स के लिए. अब हमारे लिए जो है वो अर्थ का जो सरफेस है वो रोमिंग प्लेस है. ओके. वहाँ पे उनके लिए वो स्काई है. ठीक है. और जो स्काई है वो एकदम इन्फानाइट है. आप जहाँ तक देखें आपको कभी भी, अगर आप ऊपर देखें आपको कभी भी स्काई का एंड दिखाई नहीं देगा. ओके. तो जो स्काई है वो एकदम इनफाइनाइट है. इसलिए यहाँ पे ब्यूटी दर्शाने के लिए, कैरेक्टर दर्शाने के लिए स्काई का यहाँ पे वर्ड किया गया है इनफाइनाइट का, एंड दैट इज़ अमेजिंग. ओके. और जो ट्री है वो फिर से अपनी साइलेंट मोड पे आ जाता है. साइलेंट अपने स्टिल जो हम बोलते हैं ना, स्थिर, जो स्थिर और साइलेंट जो उसकी स्टेट थी पहले, जो गोल्डफिंच की मदर आने से पहले जो उसकी स्टेट थी वैसी उसकी गोल्डफिंच की मदर के जाने के बाद स्टेट हो जाती है. ओके. तो ये सब था स्टैंजा नंबर 3 में. अब हम देखेंगे कि इस पोएम का द लेबर्नम टॉप का सेंट्रल आइडिया क्या है. ये क्वेश्चन कई बार 5 मार्क्स में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, और इसका आपको करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट आंसर यहाँ मिल रहा है. तो मैं बोल रही हूँ आपको कि आप लिख लो, बिकॉज इट्स जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके. So firstly we will read it. The poem The Laburnum Top is a beautiful poem in which the poet has used the laburnum tree and goldfinches as a symbol of life and its fluctuations.
In this poem, the poet describes how the visit of a goldfinch changes the laburnum tree. The goldfinch transforms the tree and makes it comes alive as the cheeks of the goldfinch starts to rustle and chirp on seeing her. Once the goldfinch leaves the tree, it becomes quiet and still again. The laburnum tree symbolizes the pattern of our life in general, which is usually dull and inanimate. The goldfinch breaks the usual pattern and makes it lively. Without the goldfinch, the laburnum tree is just like another tree. In other words, it is the attitude of a person towards life that makes life meaningful and worth living. Amazing central idea this poem is giving us. Okay, hope it is clear to you. Okay, thank you guys for watching my videos. It always motivate me when I see that there are how many views or how many comments or how many likes or how many dislike also. I am the first person I know who always motivates by seeing the dislike, and I have got only one dislike till today. Okay guys, and if you want me to make more videos, then please comment me on which topic I want to make, because I want to make I like to make the videos on which topic on which you are most confusing. Okay, so please comment me that which topics are most confusing to you, and soon I am going to start a very nice series for you guys for class 11th students. I am going to start two more channels, first for physics and second for chemistry. So be awaited for these channels. Okay, till then, thank you for watching my videos, and if you really like my videos, then please hit that like button. If you dislike it, then tab on dislike button. If you want me to make more videos on which topics, please comment me that topics. And if you really think that this video is very useful, helpful to you, and you can think yes, other can also take advantage of this video, then please share my videos. And if you want me to make more and more videos for you and you will get notification, then please subscribe to my channel. Thank you so much for watching my videos. Hope it helps you. Hope you understand this amazing, outstanding poem. Thank you so much.